اسلامک شارٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قبیلوں کے اور آدمیوں کے نام لے لے کر پکار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے اللہ کے رسول کے پاس آؤ۔ سب سے پہلے انصار آئے، ان کی تعداد معمولی تھی، لیکن ایک کو دیکھ کر دوسرا آتا چلا گیا۔ مکہ کے کچھ دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی آ گئے، ان کی تعداد 100 ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی پسپا ہوئے مسلمانوں کی طرف دوڑے آ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان 100 مجاہدین کو دشمن کے ان آدمیوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ مجاہدین ان کے عقب سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ حوازن کے آدمی بوکھلا گئے اور مقابلے کے لیے سنبھلنے لگے، لیکن مجاہدین نے انہیں سنبھلنے کی مہلت نہ دی۔ ان میں سے بہت سے بھاگ نکلے، ان کے زخمی اور ہلاک ہونے والے پیچھے رہ گئے۔ وہ تو اچانک ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ مجاہدین میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ اپنے سے کئی گنا زیادہ دشمن سے لڑے اور فاتح اور کامران رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ عباس رضی اللہ عنہ کی پکار پر مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دشمن مسلمانوں کے چھوٹے سے گروہ کے جوابی حملے کو بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حوازن اور ثقیف ان کے تعاقب میں نہیں آ رہے، تو کئی ہزار مجاہدین واپس آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً منظم کیا اور دشمن پر حملے کا حکم دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ لاپتہ تھے، کسی کو ہوش نہیں تھا کہ دیکھتا کہ کون لاپتہ ہے اور کون کہاں ہے۔ وہی تنگ گھاٹی جہاں مجاہدین پر قہر ٹوٹا تھا، اب متحدہ قبائل کے لیے موت کی گھاٹی بن گئی تھی۔ قبیلہ حوازن چونکہ سب سے زیادہ لڑاکا قبیلہ تھا، اس لیے اسی کے آدمیوں کو آگے رکھا گیا تھا۔ یہ لوگ بلا شک و شبہ ماہر لڑاکے تھے، لیکن مسلمانوں نے جس قہر سے حملہ کیا تھا اس کے آگے حوازن ٹھہر نہ سکے۔ مسلمان اس خفت کو بھی مٹانا چاہتے تھے جو انہیں غلطی سے اٹھانی پڑی تھی۔ یہ دست بدست لڑائی تھی۔ مجاہدین نے تیغ زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ حوازن گر رہے تھے یا مارکے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارکے کے قریب ایک بلند جگہ کھڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے للکار کر کہا، یہ جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں، میں ابن عبد المطلب ہوں۔ حوازن پیچھے ہٹتے چلے جا رہے تھے، وہ اب وار کرتے کم اور وار روکتے زیادہ تھے۔ ان کا دم خم ٹوٹ رہا تھا۔ ان کے پیچھے قبیلہ ثقیف کے دستے تیار کھڑے تھے۔ مالک بن عوف نے چلا چلا کر حوازن کو پیچھے ہٹا لیا۔ قبیلہ ثقیف کے تازہ دم لڑاکوں نے حوازن کی جگہ لے لی۔ مسلمان تھک چکے تھے اور ثقیف تازہ دم تھے، لیکن مسلمانوں کو اپنے قریب اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور للکار نیا حوصلہ دے رہی تھی۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں کی ضربوں میں جو قہر اور غضب تھا، اور ان کے نعروں اور للکار میں جو گرج اور کڑک تھی، اس نے ثقیف پر دہشت طاری کر دی۔ ثقیف کے لڑاکے جو عرب میں خاصے مشہور تھے تیزی سے پیچھے ہٹنے لگے، اور پھر ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے بھگدڑ بپا کر دی۔ اس سے دشمن میں وہی کیفیت پیدا ہو گئی جو گھاٹی میں صبح کے وقت مسلمانوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ حوازن بڑی بری حالت میں پیچھے کو بھاگے تھے۔ اب ثقیف بھی پسپا ہوئے تو ان کے اتحادی قبائل کے حوصلے لڑے بغیر ہی ٹوٹ پھوٹ گئے۔ وہ افراتفری میں بھاگ اٹھے۔ مالک بن عوف تنگ راستے سے دور پیچھے حوازن کے بھاگے ہوئے دستوں کو یکجا کر رہا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ جارحانہ کارروائی سے منہ موڑ چکا ہے اور اپنے دستوں کو دفاعی دیوار کے طور پر ترتیب دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب دیکھی تو آپ علیہ السلام اپنے لشکر کی طرف پلٹے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو مجاہدین صبح کے وقت بھاگ گئے تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گھڑ سواروں کو آگے لاؤ۔ ذرا سی دیر میں سوار پیادوں سے الگ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے سواروں کو ایک خاص ترتیب میں کر کے حکم دیا کہ حوازن کو سنبھلنے اور منظم ہونے کا موقع نہ دو اور برق رفتار حملہ کرو۔ ان سواروں میں بنو سلیم کے وہ سوار بھی شامل تھے جن پر سب سے پہلے تیروں کی بوچھاڑیں آئی تھیں اور مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن بنو سلیم کا کمانڈر ان کے ساتھ نہیں تھا، اور وہ تھے خالد بن ولید جو ابھی تک کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار دستے کی قیادت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ آگے جو درہ ہے اس پر مالک بن عوف قبضہ کیے بیٹھا ہے، اسے درے سے بے دخل کر دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی کمان اپنے دست مبارک میں لے لی۔ آپ علیہ السلام کے اشارے پر زبیر رضی اللہ عنہ نے ایسا برق رفتار اور چچا تلا ہلا بولا کہ حوازن جو ابھی تک بوکھلائے ہوئے تھے مقابلے میں جم نہ سکے اور درے سے نکل گئے۔ درہ خاصا لمبا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ عنہ کے دستے کو درے میں ہی رہنے دیا اور حکم دیا کہ اب درہ جنگی اڈا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے دوسرا سوار دستہ آگے کیا جس کے کمانڈر ابو عامر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر رضی اللہ عنہ کے سپرد کام کیا کہ اوتاس کے قریب متحدہ قبائل کا جو کیمپ ہے اس پر حملہ کرو۔
तभी किसी ने बड़ी दूर से ललकार कर कहा, खालिद खालिद यहाँ है, ये पड़ा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े गए और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंचे। वो अभी तक बेहोश पड़े थे। आप अलैहिस्सलाम खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास बैठ गए और इंतहाई शफकत से उनके सर से पांव तक फूंक मारी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आंखें खोल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर से निकली दुआ का एजाज था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उठ खड़े हुए। उन्हें जो तीर लगे थे वो गहरे नहीं थे। तीर निकाल लिए गए और बड़ी तेजी से मरहम पट्टी कर दी गई। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के काबिल हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, जुबैर के सवार दस्ते में शामिल हो जाओ, तुम अभी कमान नहीं ले सकोगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु एक घोड़े पर सवार हो गए। उनके कपड़े खून से लाल थे। उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के सवार दस्ते में शामिल हो गए। उन्होंने जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या हुक्म है? जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बताया कि हवाज़िन की खैमागाह पर हमला करना है जो औतास के करीब है, लेकिन ये हमला अबू आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु करेंगे। औतास वहाँ से कुछ दूर था। मालिक बिन औफ ने हवाज़िन दस्ते को वहाँ तक हटा लिया और अपनी खैमागाह के इर्द गिर्द फैला दिया। ये दिफाई हिसार था जिसकी हवाज़िन के कैंप के गिर्द जरूरत इसलिए थी कि वहाँ वो हजारों औरतें, बच्चे और मवेशी थे जिन्हें कबीला हवाज़िन के सिपाही अपने साथ लाए थे। मालिक बिन औफ ने तो ये सोचा था कि हवाज़िन अपनी औरतों और बच्चों को अपने साथ देखकर ज्यादा गैरतमंदी और बेजिगरी से लड़ेंगे, मगर अब ये सूरत पैदा हो गई कि दुरैद बिन अस्सिम्मा मालिक बिन औफ को बुरा भला कह रहा था कि उसके मना करने के बावजूद मालिक औरतों को साथ ले आया। उनके लिए अब अपने अहलो अयाल और मवेशियों को मुसलमानों से बचाना मुहाल दिखाई दे रहा था। अबू आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु का सवार दस्ता औतास की तरफ बढ़ा। करीब गए तो हवाज़िन ने जमकर मुकाबला किया। अब वो जंग जीतने के लिए या मुसलमानों को तहस नहस करके मक्का पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों से अपने अहलो अयाल और मवेशियों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये भी दस्त बदस्त मार्का था जिसमें जंगी चालों के नहीं, जाती शुजात के मुजाहिरे हो रहे थे। सवार और प्यादे लड़ते हुए वादी में फैलते जा रहे थे। अबू आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दुश्मन के 9 सवारों को हलाक कर दिया, मगर 10वें हवाज़िन को ललकारा तो उसके हाथों खुद शहीद हो गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उनका जाननशीन मुकर्रर कर दिया था। वो थे उनके चचाजाद भाई अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने फौरन कमान संभाल ली, अपने सवारों को ललकारा। हवाज़िन जख्मी हो होकर गिर रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि उनके पांव उखड़ रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु को, जिन्हें आप अलैहिस्सलाम ने दर्रे में रोक लिया था, हुक्म दिया कि अपने दस्ते को अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु की मदद के लिए ले जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए जरूरी समझा था कि दोनों दस्ते मिलकर हवाज़िन का काम जल्दी तमाम कर सकेंगे। जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने सवारों को हमले का हुक्म दिया। जब घोड़े दौड़े उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का घोड़ा दस्ते के आगे था। हवाज़िन पहले ही हिम्मत हार चुके थे। मुसलमानों के सवार दस्ते के हमले की वो ताब न ला सके और उनके जख्मियों की तादाद भी मामूली नहीं थी। वो अपनी औरतों और बच्चों को छोड़कर भाग निकले। मुसलमानों ने कैंप को घेरे में ले लिया। छोटे छोटे कबीलों के लड़ाकों ने जब हवाज़िन और सकीफ जैसे ताकतवर कबीलों को भागते देखा तो वो वहाँ से बिल्कुल गायब हो गए और अपनी अपनी बस्तियों में जा पहुँचे। मालिक बिन औफ मैदान जंग में कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो नजर आ ही नहीं सकता था। उसे अपने शहर ताइफ की फिक्र पैदा हो गई थी। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मुसलमान जिस रफ्तार और जिस जज्बे से आ रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि वो ताइफ तक पहुंचेंगे और इस बस्ती की ईंट से ईंट बजा देंगे। खतरे के पेश नजर उसने कबीला सकीफ के तमाम दस्तों को लड़ाई से निकाला और ताइफ जा दम लिया। पीछे हुनैन की वादी में कैफियत ये थी कि हवाज़िन की औरतें और बच्चे चीखो पुकार कर रहे थे। तमाम वसी और अरीज़ वादी मुजाहिदीन इस्लाम की तहवील में थी। मक्का के जो गैर फौजी मुजाहिदीन के साथ आए थे वो जख्मी मुजाहिदीन को उठा रहे थे। दुश्मन के जख्मी कर रहे थे, मर रहे थे। मरने वालों में बूढ़ा दुरैद बिन अस्सिम्मा भी था। वो लड़ता हुआ मारा गया। मुसलमानों को दुश्मन के जख्मियों और कैदियों से जो हथियार और घोड़े मिले उनके अलावा 6000 औरतें और बच्चे, 24,000 ऊंट, 40,000 बकरियां और बेशुमार चांदी हाथ लगी। मुसलमानों ने जंग जीत ली थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि मालिक बिन औफ को मोहलत नहीं दी जाएगी कि वो सस्ता सके और अपनी फौज को मुनज़्ज़म कर सके। आप अलैहिस्सलाम ने दरअसल सांप का सर कुचलने का फैसला कर लिया था। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म से माल गनीमत आई हुई औरतें, बच्चे और मवेशियों और दीगर माल को एक दस्ते के साथ जोराना भेज दिया गया। अगले हुक्म तक उन्हें वहीं रहना था।
दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से इस्लामी फौज ताइफ की तरफ पेश कदमी कर गई, जहां बड़ी खूंरेज जंग की तवक्को थी। मारका हुनैन का जिक्र कुरान हकीम में सूरह तौबा में आया है। बाज़ सहाबा कराम ने मारका शुरू होने से पहले कहा था कि हमें कौन शिकस्त दे सकता है, इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कौन कर सकता है। सूरह तौबा में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने बहुत से मौकों पर तुम्हारी मदद की और हुनैन के दिन भी जब तुमको अपनी कसरत पर नाज था, हालांकि वो तुम्हारे कुछ काम न आई और जमीन बावजूद अपनी वसअत के तुम पर तंग हो गई और तुम पीठ फेर कर भागे। फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मुसलमानों पर तसल्ली नाजिल की और वो फौजें उतारी जिनको तुमने नहीं देखा, और काफिरों को सजा दी और काफिरों का बदला यही है। ताइफ बड़ी खूबसूरत बस्ती हुआ करती थी, बागों की बस्ती थी, फूलों और फलों की महक से हवाएं मखमूर रहती थी। ताइफ में जाकर दुखी दिल खिल उठते। ये जंगजू सरदारों की बस्ती थी। ये सकीफ जैसे ताकतवर कबीले का मरकज था। इस बस्ती के करीब उस कबीले की इबादत गाह थी, जिसमें सकीफ, हवाजिन और चंद और कबाइल के देवता लात का बुत रखा था, जो बुत नहीं एक चबूतरा था। ये कबाइल उस चबूतरे को देवता कहते और उसकी पूजा करते। इस इबादत गाह में उनका काहिन रहता, जिसे खुदा का और देवता लात का एलची समझा जाता। काहिन फाल निकाल कर लोगों को आने वाले खतरों से आगाह कर दिया करता। काहिन किसी खुश नसीब को ही नजर आया करता था। आम लोगों को काहिन नहीं, इबादत गाह के सिर्फ मुजावर मिला करते। काहिन को जो देख लेता वो ऐसे खुश होता जैसे उसने खुदा को देख लिया हो। ताइफ क्योंकि उनके देवता का मस्कन था, इसलिए ये कबाइल का मुकद्दस मकाम था। एक ही महीना पहले ताइफ में जश्न का समा था। यहाँ के सरदार आला मालिक बिन औफ ने अपने कबीले जैसे एक ताकतवर कबीले हवाजिन और कुछ और कबीलों के सरदारों को बहुत बड़ी जियाफत में मदऊ किया था। इलाके की चुनी हुई नाचने और गाने वालियां बुलाई गईं। उनके रक्स ने तमाशाइयों पर वजद तारी कर दिया। उस रात शराब के मटके खाली हो रहे थे। उस रात अहले सकीफ और अहले हवाजिन ने अहद किया था कि वो मक्का पर अचानक हमला करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मक्का के तमाम मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उन कबाइल के एक ज़ईफुल उम्र सरदार दुरैद बिन असिम्मा ने कहा था, उठो और लात के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम मोहम्मद और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे। मालिक बिन औफ, जिसकी उम्र अभी 30 साल थी, जोश से फटा जा रहा था। उसने कहा था कि कबाइल का मुतहदा लश्कर मक्का में मुसलमानों को बेखबरी में जा दबोचेगा। उस रात मालिक बिन औफ, दुरैद बिन असिम्मा और दूसरे कबीलों के सरदार काहिन के पास गए थे। काहिन से उन्होंने पूछा था कि वो मक्का के मुसलमानों को बेखबरी में दबोच सकेंगे और क्या उनका अचानक और गैर मुतवक्के हमला मुसलमानों को घुटनों बिठा सकेगा। काहिन ने उन्हें यकीन दिलाया था कि देवता लात ने उन्हें आशीर्वाद दे दिए। काहिन ने बड़े वसूख से कहा था, मुसलमानों को उस वक्त पता चलेगा जब तुम्हारी तलवारें उन्हें काट रही होंगी। अब एक ही माह के बाद ताइफ का हुस्न उदास था। बस्ती के माहौल पर खौफ व हरास तारी था। अपने देवता लात की आशीर्वाद से और काहिन की यकीन दहानी से सकीफ, हवाजिन और दीगर कबाइल का जो लश्कर मक्का पर हमला करने गया था, वो मक्का से दूर हुनैन के मकाम पर मुसलमानों के हाथों पिटकर और तितर बितर होकर वापस आ रहा था। भाग कर आने वालों में पेश पेश उस मुतहिदा लश्कर का सालार आला, जवां साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में ताइफ की तरफ बढ़े आ रहे थे। ताइफ की गलियों में घबराई घबराई सी आवाजें उठ रही थी। ताइफ के लोगों, मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ, अनाज और खजूरें इकट्ठी कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। उसे ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। उसे शिकस्त और पसपाई की चोट तो पड़ी ही थी। सबसे बड़ी चोट उस पर ये पड़ी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने उसकी बहादुरी और फतह के गीत गाने की बजाय उसे नफरत की निगाहों से देखा और उसके लश्करियों को बाज औरतों ने ताने भी दिए। औरतें लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थीं, बीवियां और बेटियां कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे? बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो। ये भी एक ताना था जो औरतें उन्हें दे रही थी। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब, सालारों और कमांदारों को बिठा रखा था और उन्हें बड़ी तेज तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने जरा सा भी आराम न किया। आते ही ताइफ का दिफा मजबूत करने में लग गया। उसके नायब, कमांदार और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। उसने अपनी सबसे ज्यादा हसीन और चहीती बीवी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। बीवी ने उससे कहा,
क्या आपने हलफ नहीं उठाया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तमाम पैरोकारों को जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे? आप फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हलफ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद आप पर हराम है। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी हुक्म अदूली की जुर्रत न करो। मैं बहुत थका हुआ हूँ और परेशान हूँ। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरी सबसे ज्यादा प्यारी बीवी हो। बीवी ने कहा, आपको मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की जरूरत है। मुझे उस मालिक बिन औफ की जरूरत है जो यहाँ से अहद करके निकला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही खत्म करके वापस आएगा। कहाँ है वो मालिक बिन औफ? वो मेरे लिए मर गया है। इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती जो अपने कबीले और अपने दोस्त कबीलों की हजारों औरतों और हजारों बच्चे अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी ख्वाबगाह में आ बैठा है और एक औरत से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस हसीन औरत की आवाज बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ के पलंग से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी को उन औरतों की आहें और फरियादें चैन से नहीं सोने देंगी, वो जो मुसलमानों के कब्जे में है। जरा सोच, तसव्वुर में ला उन औरतों को, उन नौखेज लड़कियों को जिन्हें तू मुसलमानों के हवाले कराया है। वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो उनके कब्जे में हैं वो मुसलमान हो जाएंगे। मालिक बिन औफ तो खतरों में कूद जाने वाला खुदसर आदमी था। उसने अपने बुजुर्ग और मैदान जंग के मंचे हुए उस्ताद दुरैद बिन सिम्मा की पंदो नसीहत को ठुकरा दिया था कि वो अक्ल होश से काम ले और जवानी के जोश खरोश पर काबू पाए। अब वही मालिक बिन औफ अपनी बीवी के सामने यूं सर झुकाए बैठा था जैसे दहकते हुए अंगारों पर किसी ने पानी छिड़क दिया। उसकी मर्दानगी खत्म हो चुकी थी। उसकी बीवी ने कहा, तमाम मुसलमानों को खत्म करने गए थे मालिक। मुसलमानों को खत्म करते करते तुम मुसलमानों की तादाद में इजाफा कर आए हो। उसकी बीवी अब इस तरह बोलने लगी जैसे उसकी निगाहों में इतने जर्री और बहादुर शौहर का एहतराम खत्म हो चुका था। मालिक बिन औफ ने कहा, काहिन ने कहा था कि। बीवी ने उसकी बात काटते हुए कहा, कौन काहिन? वो जो मंदिर में बैठा फाले निकालता रहता है। तुम जैसे आदमी अपनी किस्मत अपने हाथ में रखा करते हैं और अपनी किस्मत अपने हाथों बनाया और बिगाड़ा करते हैं। तुमने काहिन से पूछा नहीं कि उसकी फाल ने झूठ क्यों बोला? मालिक बिन औफ उठ खड़ा हुआ। उसकी सांसें तेजी से चलने लगी। उसकी आंखों में खून उतरने लगा। उसने दीवार के साथ लटकती हुई तलवार उतारी और बीवी से कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। इस्लामिक शो स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें।